गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग दिस इज अंकिता अरोरा बैक विथ योर probably the last part of ITC. Why last part? Because almost all the important section that we were required to cover for ITC I have covered in this. This is the last, that is section number 18, and after section number 18 here we are not having anything other than input service distributor. And for input service distributor I'm going to provide you a link. I'm going to give you a video that has already been uploaded by me since for the previous attempt, but there is no change in input service distributor or distribution of credit by ISD. So you can use it without any doubt because there is no even a single amendment in this concept. So after this you will find that your input tax credit has been completed. It is completed by my side. So let us do one thing. Let us start section number 18. Section number 18 is about credit in special circumstances. In special circumstances credit की बात करता है section number 18. Credit is generally available when there is purchase of input, when there is purchase of input service, or when there is purchase of capital goods, subject to certain conditions that has been given in 16 subsection 1, subject to 17 subsection 5, that is about the blocked credit. Okay, however, here in section number 18, in section number 18 it is giving us credit in special circumstance credit. That means हो सकता है कहीं सेल वगैरह नहीं हुआ हो, there is no supply but still you will get the credit. So there are certain special circumstances that are not recurrent in nature. बार बार ऐसे circumstance होते रहते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो यहाँ पे you will get some special circumstances under which credit would be available, जहाँ पे हमें credit available होगा. Let us start reading, and what I will do, यही रीड करते करते आई विल एक्सप्लेन यू द थिंग्स, एंड वहाँ पे मैं आपको सॉर्टिंग करवाती जाऊँगी. फॉर दिस चार्ट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. इसके चार्ट मेरे पास प्रिपेयर्ड है, तो यू विल गेट द चार्ट्स इन द लिंक बिलो. हाफ ऑफ द पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड था. 18 में आपको पूरा की पूरा एक बार फिर से चार्ट्स मेरे ITC के लिए अवेलेबल मिल जाएंगे. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 18. एंड व्हाट डज सेक्शन नंबर 18 states that 18 subsection 1 is subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. There are certain conditions, restrictions that has been given over here. There are certain condition restriction that has been given over here, and the first one is in 18 subsection 1. In 18 subsection 1 you will actually get four circumstances. In A there is one circumstance, in B there is one circumstance, in C, in D there are four circumstances that has been given in 18 subsection 1, clause A, clause B, clause C, clause D, that defines about the various circumstance, that gives the various circumstance under which ITC is available in special circumstance, under which the ITC is available in special circumstances. Okay, now a person who has applied for registration under this act. A person who has applied for registration under this act within 30 days from the date on which he becomes liable to register and has been granted registration shall be entitled to take the credit of input tax in respect to the input held in stock and input contained in semi-finished finished goods held in stock on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under the provision. In which he becomes liable to pay tax under this provision. This is the plain reading of law. This is just a plain reading of law, और हमें इसमें से तो कुछ समझ ही नहीं आया, ऐसा हम मान के चलते हैं. लेट अस डू वन थिंग. अब हम इसको क्या करते हैं, बहुत तसल्ली से इसे क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े में तोड़ के अच्छे से समझते हैं.
अ पर्सन, यहाँ लिखा है अ पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, ही हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन under this act within 30 days from date when he becomes liable to get registered. That means a person who has done what? That means a person. So basically यहाँ पे क्या कहा गया है? Is it about new registration? Yes, new registration कैसे हमें समझ में आया? Because within 30 days from date of becoming liable to register, जैसे ही liable हुए register होने के लिए, the day when the person becomes liable to get registered, he has applied for registration within 30 days. Why within 30 days? Because आपको क्या करना है? विद इन 30 डेज रजिस्टर करना है. आई होप यू स्टिल रिमेंबर द कॉन्सेप्ट. अगर 30 डेज के बाद आप रजिस्टर करते हैं तो रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन का डेट ऑफ इफेक्टिवनेस कब होगा? जिस दिन अप्लाई किया था. तो आईटीसी भी तभी से मिलेगा. तो विद इन 30 डेज अगर करते हैं तो जिस दिन आप लाइबल हुए थे, द डेट व्हेन यू बिकेम लाइबल टू गेट रजिस्टर, फ्रॉम दैट डे यू विल गेट रजिस्ट्रेशन and ITC will be available from that date if you know the concept. So यहाँ पे कहीं ना कहीं पहली circumstance आ गई हमारी A में, new registration. The first circumstance is what? First circumstance is new registration. So when you get newly registered, when you get what? Newly registered under the act, that is GST Act. When you get what? Newly registered under the GST Act, you are entitled to take the credit of input tax in respect of inputs that's held in stock, in respect of input that is held in stock, and input that is contained in semi-finished finished goods that are held in stock on the date immediately preceding the date when he becomes liable. यहाँ पे थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं. यहाँ बोल रहा है the date when he get registered, यहाँ पे he is liable to get registered. The date when he is liable to get registered, he applies for registration within 30 days. And if it is so, if registration का application 30 days में किया, that means आपको यहाँ से ITC मिलेगा on input. On input you will get ITC, because यहाँ से अगर registration देखें तो registration from the date you are liable, यहाँ से ही आपको effective registration मिल जाता है. So when you are getting effective registration from this date, that means you will get ITC on input. ITC on input available immediately before the date on being liable for registration. Immediately before the date when you are liable to get registered. तो जस्ट बिफोर, लाइबल की डेट से जस्ट बिफोर जितना भी इनपुट आपके पास है, ऑन दैट इनपुट यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट आईटीसी. ऑन दैट इनपुट व्हाट? यू आर गोइंग टू गेट आईटीसी. सो कंडीशन इज वन, एक ही कंडीशन है यहाँ पे इनपुट लेने की. सबसे पहले विद इन 30 डेज यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम बीइंग लाइबल, बिकॉज 30 डेज में अगर आपने अप्लाई किया तो यू विल गेट रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव फ्रॉम द डेट व्हेन यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड. रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव फ्रॉम द डेट when you are liable to get register. और फिर liability date से just before जितना input है you will get ITC on that. You will get what? ITC on that. इतनी बातें समझ में आई. Now ITC on input which is contained in semi-finished goods, that is contained in finished goods, etc. ठीक है, जो भी फिनिश गुड्स हैं, सेमी फिनिश गुड्स हैं, इन सब पे भी क्या करना होगा? यहाँ पे जितना भी इनपुट अवेलेबल है यू विल बी गेटिंग इनपुट ऑन दैट. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट सर्कमस्टेंस, दैट इज न्यू रजिस्ट्रेशन. नाउ ये जो रजिस्ट्रेशन था, दिस वॉज because you were liable to get registered and therefore you have taken registration. In circumstance A, you get liable to get registered and then you had applied for registration. However, if I talk about circumstance B, however, if I
talk about circumstance B, it is about the person who takes voluntary registration. A person who takes registration under subsection 3 of section 25. Section 25 subsection 3 is all about voluntary registration, and if you are taking voluntary registration, then also you are entitled to take the credit of input tax and input held in stock, input contained in semi-finished finished goods that are held on the day immediately preceding grant of registration. This was you are liable to get registered. In this case, you are getting voluntary registration. So for voluntary registration, this is the date of voluntary registration. Okay, this is the date of voluntary registration. You apply for this, and the date when you get registered, immediately when you get registered, उसके एक दिन पहले, immediately before the date you get registered, जितना भी input होगा, उस input का you will get ITC. In general term I am talking, क्योंकि यहाँ input से related अभी कुछ और conditions आएंगी. So for voluntary registration, you will get input for ITC for input. Okay. Now situation number 3. Let us come to the situation number 3, and situation number 3 is what? Where the registered person ceases to pay tax under section 10. Where he cease to pay tax under section 10, he shall be entitled to take the credit of input tax in respect of input held in stock, in respect of input contained in semi-finished finished goods held in stock, and on capital goods on date immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under section 9. Oh my god, what is this? If I know section 10, where any registered person, already a registered person, but he ceases to pay tax under section 10, that is composition. He is no longer to be a composition dealer now. He is entitled to take the credit of input tax in respect of input that are held in stock, in respect of input contained in semi-finished finished goods held in stock, and on capital goods immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under 9. That means normal mechanism. The date when you are liable to pay tax under normal mechanism, उससे पहले, just the day before this, normal mechanism के पहले, just the day before this, if you are liable to pay tax under normal mechanism, तो उससे एक दिन पहले whatever input you are having, whatever capital goods you are having, if you are having whatever input capital goods, then you are entitled to take the ITC on such. Then you are entitled to take ITC on such goods. Now, let me tell you one thing. When you were taking new registration, when you were taking voluntary registration, when you were taking voluntary registration, only one thing was left. Only you were getting ITC on one thing, and that was input. You were getting ITC on one thing, and that was input. दैट मीन्स सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी में आपको सिर्फ इनपुट का आईटीसी मिल रहा था, बट व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सिचुएशन सी, दैट इज सेक्शन नंबर 10 से मूव करते हैं हम सेक्शन नंबर 9 की तरफ, दैट इज नॉर्मल मैकेनिज्म. हियर यू कैन टेक आईटीसी, यस यू कैन टेक आईटीसी. हियर यू कैन टेक आईटीसी ऑफ इनपुट, यस यू कैन टेक आईटीसी ऑफ इनपुट. यू कैन टेक आईटीसी ऑफ capital goods. You can take ITC of what? Capital goods. Okay. Let us move forward. Provided that the credit on capital goods shall be reduced by
such preceding point as may be prescribed. However, if I talk about capital goods, यहाँ पे you cannot take the whole over ITC on capital goods. You know capital goods कुछ टाइम तक यूज हो चुके हैं, तो यूज बेसिस में क्या होगा, अवेलमेंट ऑफ आईटीसी पास्ट बेसिस पे जितना यूज हुआ है उतना आईटीसी आपको हटाना होगा. दैट मीन्स the ITC on capital good will be reduced. It will be what? Reduce. यहाँ reduce करेंगे and there will be rule for reduction. यहाँ पे रूल होगा रिडक्शन के लिए, हमें रिड्यूस करना होगा क्या, कैपिटल गुड्स के आईटीसी को रिड्यूस करना होगा. लेट अस कम टू सिचुएशन नंबर 4. सिचुएशन नंबर 4 है, नाउ you were in supply of exempted goods, exempt supply of goods and service you were doing. ठीक है, तो वेयर एन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ बाय रजिस्टर्ड पर्सन was doing the supply of exempted goods and service, but now that exempt goods or service become taxable, then in such case such person shall be entitled to the credit of again input, that is held in input stock, in semi finished goods, or even capital goods that are exclusively used for exempt supply on the date immediately preceding. That means यहाँ पार्टली वालों का कोई आईटीसी नहीं है. कैपिटल गुड्स अगर एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए थे, एक्सक्लूसिवली क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए थे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट व्हेन ये सप्लाई टैक्सेबल हुआ है, जिस दिन टैक्सेबल हुआ उससे जस्ट पहले जितना भी इनपुट कैपिटल गुड्स था, यू विल गेट आईटीसी. बट अगेन कैपिटल गुड्स का जो आईटीसी है दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय अ सर्टेन परसेंटेज एंड रूल वी विल फॉलो फॉर दैट. उसके लिए हमें क्या करना होगा, रूल फॉलो करना होगा. यहाँ तक तो बात समझ में आई. दैट मीन्स देर आर 4 सिचुएशन. एक तो 10 से हम 9 की तरफ गए एंड द 4th सिचुएशन इज एग्जेम्प्ट सप्लाई था बॉस. देर वॉज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई बट दिस एग्जेम्प्ट सप्लाई गॉट कन्वर्टेड इनटू टैक्सेबल सप्लाई एंड इन दिस केस ऑल्सो कैपिटल गुड्स का भी इनपुट अवेलेबल है एंड आईटीसी अवेलेबल है एंड इनपुट का आईटीसी अवेलेबल है, बट दिस नीड टू बी reduced. Okay, so basically these are the 4 special circumstances. Okay, let's move forward and यहाँ पे अभी और भी चीजें हैं, इतनी ही नहीं है. Let us discuss it further. 4 सिचुएशन याद हुई, न्यू रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 10 से सेक्शन 9 एंड एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल सप्लाई की तरफ जाना. दैट इज ऑल अबाउट 4 सिचुएशन, 4 सर्कमस्टेंस. नाउ 18 सबसेक्शन 2. वाई आई एम डायरेक्टली मूविंग टू 18 सबसेक्शन 2, पहले आपको यहाँ से जितना समझा सकती हूँ मैं समझा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद आपको एनालिसिस मिलेगा, तो एनालिसिस में सिर्फ फिलर्स भरने होंगे मुझे. ठीक है, तो मूविंग टू 18 सबसेक्शन 2, तो यहाँ 18 सबसेक्शन 2 बोलता है, इफ यू वांट टू टेक आईटीसी ऑफ इनपुट, इफ यू वांट टू टेक आईटीसी, आपको क्या करना है, सबसेक्शन 1 में आईटीसी लेना है. एंड सबसेक्शन 1 में क्या है, इफ यू वांट टू टेक आईटीसी ऑन इनपुट दैट इज कंटेन्ड इन स्टॉक, इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स, कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में. सो इफ यू वांट टू टेक व्हाट, इफ यू वांट टू टेक आईटीसी ऑन इनपुट, इन दैट केस और इवन अगर कैपिटल गुड्स भी हैं, तो यहाँ पे क्या याद रखना, अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सर्विस, in respect of goods or service given to him after the expiry of 1 year from the date of issue of tax invoice. That means अगर आपको ITC लेना है तो your invoice should not be 1 year old, more than 1 year old नहीं होना चाहिए. Your invoice should not be more than 1 year old. Your invoice should not be more than 1 year old. 1 year old नहीं होना चाहिए आपका इनवॉइस. ओके, नाउ
where there is a change in constitution covering 18 subsection 3. 18 subsection 3 is about what? 18 subsection 3 is about there is change in constitution of registered person, like there is sale, merger, demerger, amalgamation, lease, transfer of the business with the specific provision of transfer of liability. That means here you are transferring your ITC. यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को आईटीसी ट्रांसफर कर रहा है, तो ट्रांसफर ऑफ आईटीसी से रिलेटेड पॉइंट है कि वेयर देयर इज सेल, देयर इज डीमर्जर, मर्जर, अमालगमेशन, लीज, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, एंड इन फैक्ट द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस विद द स्पेशल प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी. Then registered person is allowed to transfer ITC to that is remaining unutilized by him to another person to whom the business is being transferred. तो अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन अपने बिजनेस को सेल करता है, if a registered person sells his business, he can also transfer the unutilized ITC in its electronic credit ledger to the person who has purchased, to whom it is sold, merged, demerged, amalgamated, leased or transferred business. So basically if I tell you one thing, there is first category. यहाँ पे क्या है, अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है, आईटीसी कैसे अवेल करना है. फर्स्ट कैटेगरी इज रिलेटेड टू आईटीसी अवेलमेंट. Second category if I talk about is related to ITC transfer करने से related है, that you can transfer your ITC. In availment we have to see what new registration. In availment there is what new registration. In availment there is what voluntary registration. There is new registration, there is voluntary registration, there is conversion from section 10 to 9, there is conversion from exempt to taxable supply. There is conversion from exempt to what? Taxable supply. ITC transfer allowed है from electronic credit ledger. We will discuss this in further. We will discuss in more detail ये वाले पॉइंट को, बट अभी आपको एटलीस्ट एक ग्राफ फॉर्म हो रहा होगा, ब्लूप्रिंट छप रही होगी आपके दिमाग में कि ये सेक्शन क्या है. ओके चलो आगे बढ़ें. यस मैम. नाउ 18 सबसेक्शन 4. 18 सबसेक्शन 4 अब क्या आ गया, तो 18 सबसेक्शन 4 इज अबाउट व्हाट. 18 सबसेक्शन 4 इज अबाउट रिवर्सल काइंड ऑफ चीज़ों के लिए है मैम. रिवर्सल कैसे? वेयर any registered person, okay, who has availed input tax credit, already ITC has been availed by this person, but now he opts to pay tax under section 10, but now he is opting to pay the tax under section 10, or where the goods or service or both supplied by him becomes wholly exempt, or where the goods or service or both supplied by him becomes wholly exempt. तो प्रीवियसली क्या था, सेक्शन 10 से सेक्शन 9 की तरफ मूव करते थे, अब सेक्शन 9 से सेक्शन 10. पहले था एग्जेम्प्ट से क्या हुआ था, टैक्सेबल हुआ था, अब क्या है, टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट हो गया है. दैट मीन्स हियर ऑलरेडी आईटीसी अवेल कर लिया था, बट अब आईटीसी अवेल करने के बाद सेक्शन 10 या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई में यू हैव मूव्ड. दैट मीन्स वॉट एवर इज क्रेडिटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, दैट ITC need to be debited, that ITC need to be debited. That means reversal demand हो रही है यहाँ पे. So basically this is the circumstance related to what? Reversal. This is the circumstance that relates to what? Reversal. अब reversal से related चीज़ें भी हम यहाँ पे समझेंगे. Are you getting the blueprint of this section number 18? Believe me, this is important section. That's why I'm giving so much of emphasis on reading over here. Provided that after payment of such amount, balance of input tax credit, if any, lying in credit ledger lapses, that we will discuss. क्या है, आपका कुछ टैक्स लाइबिलिटी आती है, आपने टैक्स लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर दिया आईटीसी से, अभी भी आईटीसी कुछ बचता है तो यू कैन टेक रिफंड. दिस विल लैप्स, दिस विल लैप्स. ओके, अभी आगे इसको और डिस्कस करेंगे.
कवरिंग 18 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ क्रेडिट अंडर सबसेक्शन 1 एंड द अमाउंट payable under subsection 4 shall be calculated in manner that may be prescribed. For this, rules are already been given. We will discuss the rules for this. Now, sixth is what? Sixth is related to in case capital goods or plant machinery on which ITC already taken, registered a person shall pay an amount equal to input tax credit taken on said capital goods or plant machinery reduced by such percentage, or tax on transaction value of capital goods on or plant or machinery determined under section 15, whichever is higher. दैट मीन्स यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू का सवाल तभी उठता है जब यू आर सेलिंग द कैपिटल गुड्स. व्हेन यू सेल अ कैपिटल गुड्स, ऑन सेल ऑफ कैपिटल गुड्स आपको क्या करना होगा, रिवर्सल करना होगा आईटीसी दैट हैज बीन अवेल्ड बाय यू. सो दिस is 18 subsection 6 that is talking about the reversal. So first category was related to availment, second was related to transfer, third is related to what, ITC reversal. Third related to what, ITC reversal, and fourth is related to what, sale of capital goods. That relates to what, sale of capital goods. Okay, so these are the four cases. These are what, four cases, and these four cases are subdivided. यहाँ पे हमें बहुत डिटेल में जाना है, तो this is just a blueprint of section number 18. अच्छे से समझ में आई अभी तक ब्लूप्रिंट? यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम, यहाँ तक तो अभी कोई डाउट नहीं है. चले आगे. यस मैम, बिल्कुल बढ़ते हैं. Now there are certain rules. Okay, you have to follow certain rules. तो अब मैं आपको rules के साथ में भी बताती जाऊंगी कौन से सेक्शन के साथ कौन सा रूल फॉलो होगा, so that it would become easy for you to understand this. Okay, it would become what, easy for you to understand. So let us start with 18 subsection 1. Let us start with 18 subsection 1, and you know what is 18 subsection 1? When there is new registration, when there is new registration, when there is voluntary registration, when there is section 10 to section 9, and when there is exempt supply to taxable supply. Okay, so with that was the category of ITC availment. That was a category of what, availment of ITC. That was category of what, availment of ITC. And for that you have to follow rule number 40. For availing ITC, rule number 40 has been given. And what has been given in rule number 40? The input tax credit claimed in accordance with the provision of subsection 1 of section 18 on input that is held in stock, or input contained in semi-finished finished goods that are held in stock, or the credit claim on capital goods in accordance with the provision of clause C and D. Yes, because only in section 10 to 9, only in exempt to taxable कैपिटल गुड्स का आईटीसी सिर्फ वही मिलता है. It shall be subjected to following condition. Following condition are required to be followed when you want to take ITC in special circumstance, and that too in 18 subsection 1. That too in what, section 18 subsection 1. So the basic thing, the first thing that you have to follow over here is input tax credit on capital goods. You know, input tax credit on capital goods need to be reduced. That we know कि हाँ हमें capital goods का input क्या करना होता है, reduce करना होता है. तो it should be reduced by how much? It should be reduced by 5%, 5% per quarter of the year, or part 5%, 5% for the quarter, और part of the quarter 5% क्या होता जाएगा, रिड्यूस होगा आईटीसी फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और सच अदर डॉक्यूमेंट ऑन विच कैपिटल गुड्स वर रिसीव बाय द टैक्सेबल पर्सन.
टैक्सेबल पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन ने कैपिटल गुड्स परचेज किए, टैक्सेबल पर्सन परचेज कैपिटल गुड्स एंड फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, जब तक ये जिस दिन से इनवॉइस आया, अब ये कितना यहाँ पे क्या हो चुका है, यूटिलाइज हुआ है, यू हैव टू reduce ITC as 5% of the quarter or part of the quarter. ITC सपोज 2 लाख है तो 2 लाख का ITC क्वार्टर वाइज 5% रिड्यूस होता जाएगा। दैट मीन्स पास्ट में कितना यूज हुआ है उसके बेसिस पे यहाँ पे ITC क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा एंड नेट ITC विल बी अवेल्ड, एंड नेट ITC विल बी अवेल्ड। दिस इज बिन गिवन वेयर इन रूल नंबर 40। रूल नंबर 40 में दिया है इनवॉइस की डेट से 5% क्वार्टर 5 एंड पार्ट ऑफ द क्वार्टर यू हैव टू रिड्यूस एंड दिस विल बी व्हाट, यहाँ पे आपका ITC क्या होगा, अवेलमेंट जो होता है ITC का, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितना अवेल कर सकते हैं। देन रजिस्टर्ड पर्सन, नॉट ओनली दिस, यहाँ सिर्फ रिड्यूस नहीं करना है बट रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना होगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days from date of becoming eligible to avail the ITC under section 18 subsection 1 or within a period as may be extended by the commissioner, he has to make a declaration electronically on electronic portal that is in GST ITC 01। जैसे ही आपको पता चलता है the day you know that now you can avail ITC, then within 30 days from the date you become eligible to claim the ITC, you have to give a declaration and declaration is to be filed in ITC 01. It has to be filed in ITC 01 and this 30 days could be extended by whom? It could be extended by the commissioner. Okay. सो बेसिकली रिड्यूस करना एंड देन आपको डिक्लेरेशन भी देना होगा। सो द एक्सटेंशन कैन बी गिवन बाय होम, इट कैन बी गिवन बाय कमिश्नर एंड नाउ दिस डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज बी, ये जो क्लॉज बी का डिक्लेरेशन है, व्हाट इज दिस डिक्लेरेशन अबाउट, इट विल क्लियरली स्पेसिफाई, दिस डिक्लेरेशन विल क्लियरली स्पेसिफाई द डिटेल्स दैट रिलेट्स टू इनपुट दैट इज हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट हेल्ड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, देन इनपुट दैट इज हेल्ड इन कैपिटल गुड्स। तो पूरी डिटेल देगा कि हमारे पास ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग व्हेन दे बिकम लाइबल टू गेट रजिस्टर, या फिर ऑन द डेट व्हेन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ था उसके एक दिन पहले, या फिर ऑन डेट यू बिकम लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9, और ऑन द डेट इमीडिएटली बिफोर द डेट, इट इज ऑल इमीडिएटली बिफोर द डेट व्हेन आपने टैक्सेबल सप्लाई स्टार्ट किया है, तो कितना इनपुट कितना था, आपका कैपिटल गुड्स कितना था, उनसे रिलेटेड ITC कितना है, दिस यू हैव टू गिव इन दैट डिक्लेरेशन, यू हैव टू डिक्लेयर इट विद इन 30 days। कितने दिन में? विद इन 30 days you have to declare, so you have to what? Declare it. Now the detail furnished in the declaration, whatever detail you are furnishing in the declaration, जो भी declaration आप दे रहे हैं, it should be duly certified by chartered accountant, cost accountant only when, if you claim that CGST, SGST और UTGST और IGST, whatever is CGST या तो आपका IGST, UTGST, इफ इट एक्सीड्स 2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा का ITC आप क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन नीड टू बी सर्टिफाइड बाय चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टेड अकाउंटेंट इस डिक्लेरेशन को क्या करेंगे, दिस डिक्लेरेशन नीड टू बी फर्निश्ड, यहाँ पे ये डिक्लेरेशन क्या होगा, दिस डिक्लेरेशन नीड टू बी सर्टिफाइड बाय चार्टेड अकाउंटेंट। ओके। Moving forward, input tax credit claimed in accordance with the provision of clause C, clause D of subsection 1 of section 18. Now, whatever input tax credit that is claimed in accordance with the input tax credit claimed in accordance with the provision of clause C, clause D of subsection 1 of section 18, it shall be verified with corresponding detail furnished by the corresponding supplier in form GSTR1 as the case may be GSTR4 on the common portal। ये जितना भी आप क्लेम कर रहे हैं
जो भी आईटीसी आप क्लेम कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज सी एंड डी क्लॉज कौन सा है, जहाँ पे एग्जाम टू टैक्सेबल जा रहे हैं या फिर सेक्शन 10 से सेक्शन 9 की तरफ जा रहे हैं, तो इट शैल बी वेरीफाइड, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी वेरीफाइड विद द डिटेल्स उसकी वेरीफाई की जाएंगी बाय सप्लायर इन फॉर्म 0 GSTR 1 या फिर GSTR 4 के थ्रू। नाउ इसका मतलब एक डिक्लेरेशन चाहिए विद इन 30 डेज। डिक्लेरेशन में अगर टैक्स वगैरह आईटीसी मोर देन 2 लाख है तो सीए सर्टिफाइड होना चाहिए। देन इसके बाद क्या है, इसके बाद एक चीज़ और है एंड दैट इज आपको इनवॉइस जो है, इनवॉइस आपका 1 ईयर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ओके एंड रूल नंबर 40 में क्या क्या दिया है, तो रूल नंबर 40 में जस्ट नाउ वी हैव कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, रूल नंबर 40 में क्या करना होगा, सबसे पहले 5% से कैपिटल गुड्स का आईटीसी रिड्यूस करना होगा। देन डिक्लेरेशन इलेक्ट्रॉनिकली देनी है। देन डिक्लेरेशन में क्या होगा, 30 डेज में डिक्लेरेशन दो, अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो सीए सर्टिफाइड होगा। एंड वेरीफाई भी करना है सी और डी का, अगर आप क्लेम कर रहे हैं आईटीसी तो। चलो आगे, the amount of credit in case supply of capital goods plant machinery for the purpose of subsection 6 of section 18, again it shall be calculated by reducing the ITC on such goods by 5% for every quarter or part of the quarter from the date of issue of invoice. Again here in 18 subsection 6 that is when you sell the capital goods, तो ये हम पहले जब सेल ऑफ कैपिटल गुड्स पे आएंगे हम तब डिस्कस करेंगे, इसको अभी मैं यहीं छोड़ रही हूँ बिकॉज ये मिक्स हो जाएगा। तो अभी 18 सबसेक्शन 1 पे थे। 18 सबसेक्शन 1 में कितनी चीज़ें थी, एक बार अब मैं आपको जल्दी जल्दी समराइज करवा देती हूँ। तो ऑलरेडी वी हैव डन विद दिस, हमने कर लिया 18 सबसेक्शन 1। तो 18 सबसेक्शन 1 में क्या था, 18 सबसेक्शन 1 में व्हेन देयर इज न्यू रजिस्ट्रेशन, ओके व्हेन देयर इज न्यू रजिस्ट्रेशन तो आपको क्या मिलता था, व्हेन देयर इज जस्ट अ मिनट, यस when there is new registration you will get ITC, yes ITC मिलेगा इनपुट का, ठीक है। इसके लिए क्या करना था, GST आपको क्या करना था, आपको 01 में ITC 01 में क्या करना था, GST या ITC 01 में यू हैव टू गिव डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन अबाउट ओनली इनपुट, यहाँ सिर्फ इनपुट से रिलेटेड ही यू विल गेट, और ये डिक्लेरेशन विद इन 30 डेज यू हैव टू गिव, यही था। अगर डिक्लेरेशन में ऐसा है आईटीसी क्लेम कर रहे हैं आप 2 लाख से ज़्यादा, तो 2 लाख से ज़्यादा क्लेम करने की सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, 2 लाख से ज़्यादा क्लेम करने की सिचुएशन में सीए सर्टिफाइड होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफाई करेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड इज वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, न्यू तो है बट दिस इज वॉलेंट्री, तो वॉलेंट्री के केस में भी आईटीसी मिलेगा, इनपुट पे मिलेगा, 30 डेज के अंदर डिक्लेरेशन यू हैव टू मेक। बट यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन में 30 डेज में आपको फ्रॉम द डेट यू बिकम लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन आपको 30 डेज में रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई करना होगा। अदरवाइज आपको जिस दिन तक आपने अगर 30 डेज में अप्लाई नहीं किया तो फिर कुछ हद तक का आईटीसी आप क्या कर देते हो, खो देते हो। एंड दैट यू नो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इफेक्टिव डेट आपकी रजिस्ट्रेशन की क्या होती है, तो उसमें मैं ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ, ठीक है। फिर आते हैं हम आगे, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे फिर क्या, रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 10 से 9 की तरफ जा रहे हैं या फिर एग्जाम से कहाँ जा रहा है, एग्जाम से टैक्सेबल की तरफ जा रहा है। तो इन दैट केस, इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा, अगेन आपको कैपिटल गुड्स एंड इनपुट दोनों का आईटीसी मिलेगा। एंड कैपिटल गुड्स एंड इनपुट में दोनों का आईटीसी मिलने से क्या होता है, यहाँ पे आईटीसी मिलने के बाद आपको कैपिटल गुड्स पे 5% ऑफ द क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर रिड्यूस करना है, जितना ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। प्रीवियस यूज़ किया हुआ आईटीसी, जो आपने पहले से ही आईटीसी क्या है कैपिटल गुड्स यूज़ किए, तो वो जितने टाइम तक यूज़ किया उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आज जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्जन के बाद, रिडक्शन के बाद आपको आईटीसी मिलना यहाँ पे स्टार्ट होता है। दिस इज ऑल अबाउट 18 सबसेक्शन 1। दिस इज ऑल अबाउट 18 सबसेक्शन 1। 18 सबसेक्शन 2 कहता था कि आईटीसी लेना है तो इनवॉइस शुड नॉट बी
older than 1 year, 1 साल से ज़्यादा पुराना इनवॉइस नहीं होना चाहिए। देन 18 सबसेक्शन 3 आईटीसी ट्रांसफर है, 18 सबसेक्शन 3 है, तो 18 सबसेक्शन 3 से रिलेटेड क्या है? 18 सबसेक्शन 3 कहता है अब रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है अपना बिजनेस टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन और टू अनदर अनरजिस्टर्ड पर्सन। नाउ दिस इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। नाउ दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अब ट्रांसफर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें आ गई। अब ट्रांसफर जो बिजनेस का होगा, इट कुड बी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, इट कुड बी इवन टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन को भी ट्रांसफर हो सकता है बिजनेस, अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी बिजनेस ट्रांसफर किया जा सकता है। सो बेसिकली व्हाट इज बीइंग given in 18 subsection 3 that when you transfer your business, पहले क्या होता था? आपने सप्लाई किया, आपने परचेज किया, यू कैन अवेल आईटीसी। सेकेंड में था कुछ ठीक है, वॉलंटरी से हमने रजिस्ट्रेशन लिया, न्यू रजिस्ट्रेशन लिया, ठीक है, आईटीसी अवेल कर सकते हैं। बट नाउ दे आर आस्किंग टू ट्रांसफर आईटीसी, आईटीसी ही ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसा हो सकता है अगर आपने आपका बिजनेस ट्रांसफर किया है। Now, when you transfer the business, and transfer of business is with a special provision to transfer liability that we have already discussed in liability in certain cases वाला चैप्टर नहीं देखा तो जाके देखना, जहाँ मैंने इसका डिटेल बताया है कि अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं बिजनेस विद द स्पेशल प्रोविजन टू ट्रांसफ़र द लाइबिलिटी, तो वहाँ पे असेट एंड लाइबिलिटी दोनों ट्रांसफ़र होती है। तो हेयर वी आर ट्रांसफरिंग द बिजनेस दैट इज गोइंग कंसर्न, एज अ गोइंग कंसर्न हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब दिस बिजनेस कुड बी ट्रांसफर टू इवन अ रजिस्टर्ड पर्सन और अ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी जा सकता है। नाउ व्हेन द बिजनेस इज गोइंग टू रजिस्टर्ड पर्सन, सो ही कैन टेक आईटीसी बिकॉज आपने स्पेशल प्रोविजन में ट्रांसफर किया है, तो ही कैन अवेल द ITC, but here he has to follow rule, and that rule is given in 41. Rule number 41 थोड़ा सा follow करते हुए चलना है। But रजिस्टर्ड पर्सन था, रजिस्टर्ड पर्सन ने एक दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को बिजनेस ट्रांसफर किया, आईटीसी अवेल कर लेंगे, लेकिन रूल नंबर 41 फॉलो करना होगा। बट वॉट इफ द रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफर द बिजनेस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, बिकॉज अनरजिस्टर्ड पर्सन तो आईटीसी अवेल नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज ही इज अनरजिस्टर्ड, तो वो नहीं क्या करेगा? अवेल नहीं कर सकता, यूटिलाइज नहीं कर सकता आईटीसी। सो इन दैट केस व्हाट ही शुड डू, तो यहाँ पे ही शुड सुनो मेरी बात, ही शुड गेट रजिस्टर्ड, उसे रजिस्टर होना होगा, और यहाँ कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। He should get registered, and registered होना है without taking the benefit of threshold limit that is given in section number 22. सेक्शन नंबर 22 में जो थ्रेशोल्ड लिमिट दी है 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, एज द केस में भी, वो आपको क्या करनी है? नहीं मिलेगी आपको, यहाँ कहीं ना कहीं कंपल्सरी रजिस्टर होना पड़ जाएगा। इफ यू वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ व्हाट? इफ यू वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ आईटीसी, ठीक है। फिर इसके बाद हम समझते हैं व्हाट इज दिस रूल नंबर 41। अगर हम रूल नंबर 41 की बात करें तो ये रूल नंबर 41 क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल नंबर 41, whatever is the ITC balance that has been unutilized, जो ITC बैलेंस है जो यूटिलाइज नहीं हुआ है, जो ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन देना होगा। डिक्लेरेशन नीड टू बी गिवन। यहाँ पे क्या देना होगा? डिक्लेरेशन अबाउट द unutilized ITC balance that is to be transferred. ITC balance needed to be transferred, जो ट्रांसफ़र करना है उसका डिक्लेरेशन देना होगा। एज वेल एज अगेन CA या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेंगे? CA और कॉस्ट अकाउंटेंट इसे क्या करेंगे? सर्टिफाई करेंगे। दे विल व्हाट? दे विल सर्टिफाई, उनका सर्टिफिकेशन ज़रूरी हो जाएगा अगर फिर से आईटीसी जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं दैट इज मोर देन 2 लाख। लेट अस सी हमारे 41 में क्या दिया है। हम आ जाते हैं डायरेक्टली 41 पे। कहाँ है भैया 41? कहाँ है? यहाँ है।
A registered person in the event of sale, merger, demerger, amalgamation, or transfer or change in the ownership of the business for any reason furnished the detail of sale, merger, demerger, amalgamation in form ITC-02 electronically along with the request for transfer of unutilized ITC that lies in electronic credit ledger to the transferee. क्या आपको कितना, एक तो आपका सेल मर्जर डीमर्जर की डिटेल दो, वॉट एवर इज द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर उसकी डिटेल देना है, और कितना अनयूटिलाइज क्रेडिट आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी डिटेल यू हैव टू गिव। प्रोवाइडेड दैट अगर हम डीमर्जर की बात करें तो इन केस ऑफ डीमर्जर इनपुट टैक्स क्रेडिट अपोर्शन होगा इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट दैट इज ट्रांसफर टू द न्यू अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे डीमर्जर में अगर आप आईटीसी दे रहे हो, एक यूनिट है, एक यूनिट का क्या हो जाता है, डीमर्जर हो जाता है, तो आईटीसी कितना जाएगा, तो आईटीसी शैल बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट of new unit as specified in the demerger scheme। demerger scheme में न्यू यूनिट को कितनी असेट मिली है उसके बेसिस पे आईटीसी जाएगा। एग्जाम्पल, इट इज के लिमिटेड, के लिमिटेड है, के लिमिटेड का क्या हुआ, डीमर्जर हुआ एंड एक बन गई एम लिमिटेड तो दूसरी बन गई एन लिमिटेड। एम लिमिटेड गॉट 40% asset and 60% asset किसके पास गई, एन लिमिटेड के पास। In this case, ITC will be transferred. In this case, ITC will be transferred in the ratio of transfer of asset. जितनी asset transfer हुई है उतने पे. Okay. So here the asset transferred would be on which ITC have been availed. On which ITC, यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये जो के लिमिटेड है, के लिमिटेड का डीमर्जर हुआ एम लिमिटेड में 40% 60% हो गया, तो जितना आईटीसी जाएगा वो अपोर्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ असेट ऑन द बेसिस ऑफ असेट दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द न्यू यूनिट। ठीक है, अब इसमें आगे क्या है, इसमें आगे ये है, ये जो असेट ट्रांसफर की जा रही है, द असेट दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो ये जो, जस्ट अ मिनट, यहाँ हम न्यू पेज पे लेते हैं। एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, असेट ट्रांसफर्ड, ये जो असेट जितनी भी ट्रांसफर हो रही है, द असेट ट्रांसफर्ड, ये जो असेट क्या हो रही हैं, ये जो असेट ट्रांसफर हो रही हैं, दिस आर द असेट ऑन विच देयर आर सर्टेन असेट ऑन विच आईटीसी हैव बीन अवेल्ड and there are certain asset on which ITC not available। अब यहाँ पे ये जो asset transfer हो रही है, कुछ assets तो ऐसी होंगी जिसमें ITC availed हो चुका है, on which ITC have been availed, some portion of ITC availed, और कुछ asset ऐसी होंगी जहाँ पे ITC not available, जहाँ पे ITC available ही नहीं होगा। Asset transferred would include the asset on which ITC have been availed, and it would also include on which ITC is not available, right? However, when you proportion, जैसे मैंने बोला 40% and 60% ITC जो है, 40-60% ITC के बारे में बोले, that means asset जितना transfer हुआ है, तो in this case proportion of whole asset transferred would be taken। यहाँ पे कितना asset transfer किया, that whole asset transferred proportion will be taken। इसको मैं other words में बोलूँ तो bifurcation of ITC availed asset, bifurcation of asset on which ITC is not available, यहाँ ऐसा कुछ consider नहीं होता। अगर 40% asset गई है तो इसमें भले ITC availed asset है या फिर जिसपे not available है, इसका कोई bifurcation नहीं होगा, सीधे सीधे ITC डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड, नो bifurcation, that means in simple word there will be no bifurcation, कोई bifurcation नहीं होने वाला है। Are you getting this point? And this section,
जहाँ पे ये असेट ट्रांसफर हो रही है, दैट इज योर बिजनेस इज बीइंग ट्रांसफर्ड। आपका बिजनेस क्या हो रहा है, आपका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है। तो इन दिस केस व्हेन योर बिजनेस इज ट्रांसफर्ड, तो दिस प्रोविजन, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन ऑल्सो अप्लाई वेयर देयर इज सक्सेशन। सक्सेशन में भी एज इट इज ये फॉलो होगा। मैम सक्सेशन कैसा? सक्सेशन मीन्स कभी डेथ के कारण आपका बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है किसी और को, बाय द रीजन ऑफ डेथ आपका क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है बिजनेस। वहाँ ऑल्दो आप डिक्लेरेशन तो नहीं दे सकते बिकॉज द पर्सन हु हैज बीन डेड वो डिक्लेरेशन नहीं दे पाएगा, लेकिन उसका आईटीसी जो है वो सामने वाले को ट्रांसफर हो जाएगा। एंड दिस प्रोविजन जो हमारा बिजनेस ट्रांसफर का है, दिस अप्लाइज टू सक्सेशन ऑल्सो। So provision of this section will apply to succession of business also, like example हो गया कि डेथ के केस में अगर सक्सेशन होता है तो। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट तो पूछ लो, बिल्कुल पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ इसमें आगे और भी कुछ चीजें हैं, क्या है वो अब समझे। तो यहाँ हमने अभी क्या किया, वी हैव अंडरस्टूड कौन सा 18 सबसेक्शन 3, हमने क्या किया अभी 18 सबसेक्शन 3 किया, ठीक है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डिंग, ये तो आप समझते हो। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के बारे में बात हो रही है, यहाँ ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डिंग की बात नहीं हो रही। अब सपोज ये पर्सन है, इसने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, ये पर्सन ने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर करने के बाद ही कुड अप्लाई फॉर व्हाट, ही कुड अप्लाई फॉर कैंसलेशन ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन। वो अपने रजिस्ट्रेशन के कैंसलेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। ही वुड अप्लाई फॉर व्हाट, कैंसलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। हाउएवर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स डी रजिस्टर हो रहा है बंदा, डी रजिस्ट्रेशन इज बीइंग डन हियर। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन बी इक्वेटेड विथ व्हाट, इट इज डी रजिस्ट्रेशन। बट डी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि जो भी लाइबिलिटी इस पर्सन पे थी वो लाइबिलिटी लैप्स हो गई है, ऐसा नहीं है। लाइबिलिटी इनके ऊपर जो थी वो लाइबिलिटी कंटिन्यू होगी, और आगे से अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है, सपोज इस पर्सन ने कोई टैक्स इवेजन किया है और आगे चल के ट्रांसफर हो गया बिजनेस, उसके बाद इसका टैक्स इवेजन सामने आता है, तो ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, देन इन दैट केस ट्रांसफरर and transferee both are jointly and severally liable for what, liable for that liability. This person has transferred the business, and after transfer of business he can apply for the cancellation of his registration, but deregistration would not be equated with cancellation or lapse of his liability. However, after the transfer of business, if any tax evasion arise, then after transfer of business, both transferor and transferee jointly liable for that liability. Are you getting this point? Yes, ma'am. Again repeating, if you have any doubt, ask me through the comment. Okay. Now, these are certain points that we have already discussed, that submit a certificate issued by chartered accountant, ठीक है, specific provision for the transfer of liability, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ट्रांसफरर शेल ऑल्सो सबमिट अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफाइंग दैट सेल, मर्जर, डीमर्जर, lease or transfer of business has been done with the specific provision for the transfer of liability. यहाँ पे आपको आईटीसी ट्रांसफर वाला नहीं देखना है, आई गेस मैंने वहाँ आईटीसी ट्रांसफर बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आपको इन दिस केस जब आपका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, तो इफ इट इज ट्रांसफर्ड विद द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी, तो सीट सर्टिफाई करेगा इस चीज़ को। देन डिक्लेरेशन जो दे रहे हैं आप यहाँ पे, ट्रांसफरी क्या करेगा, डिटेल्स फर्निश करेगा। He will vote on the common portal except the details that is been furnished by transferor. ट्रांसफरी क्या करेगा, जो ट्रांसफरर ने डिटेल दी है वो डिटेल एक्सेप्ट करेगा अनयूटिलाइज क्रेडिट की ITC 02 के फॉर्म में, एंड दैट विल गेट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ITC होता है, दैट विल बी ट्रांसफर्ड। अगर बिजनेस ट्रांसफर करते वक्त इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कुछ है, तो कैश लेजर का पैसा तो वो निकाल सकता है, वो
बिजनेस ट्रांसफर करते वक्त वो किसी को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, वो तो क्योंकि कैश लेजर में इसलिए डाला था कि कुछ भी टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट आएगा तो वो भर देगा, ही विल पे, तो इसे वो विड्रॉ कर सकता है। एंड लाइबिलिटी जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर की जो लाइबिलिटी है ट्रांसफर के पहले की ट्रांसफरर की लाइबिलिटी है, एंड ट्रांसफर के बाद जो लाइबिलिटी आती है जॉइंटली सेवरली लाइबल हो जाएंगे। ठीक है। देन इनपुट एंड कैपिटल गुड्स सो ट्रांसफर शेल बी ड्यूली अकाउंट करेगा ट्रांसफरर इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उन्हें लिखना होगा। ठीक है। देन ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट और ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ द बिजनेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। नाउ टॉकिंग अबाउट 41, यहाँ पे 41 में क्या बोला है, 41A में क्या बोला है, लेट अस डिस्कस दिस। अ रजिस्टर्ड पर्सन who has obtained separate registration for multiple place of business in accordance with the provision of Rule 1 and who intend to transfer either wholly or partly the unutilized ITC that lies in the credit ledger to any or all of the newly registered place of business shall within 30 days from obtaining such separate registration the details in GST ITC 02A electronically in common portal directly or through facilitation center by commissioner in this behalf by commissioner। यहाँ पे एक रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन ने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ही इज ऑब्टेनिंग। नाउ ही वांट्स कि उसका अनयूटिलाइज क्रेडिट उसके क्या हो जाए, न्यूली रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ द बिजनेस को ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ पे विद इन 30 डेज फ्रॉम ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन उन्हें फिर से डिटेल देनी होगी, एंड डिटेल देने के बाद वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपना अनयूटिलाइज क्रेडिट टू द न्यूली रजिस्टर्ड unit. Now provided that ITC shall be transferred to newly registered entity in ratio in which value of asset is held by them at the time of registration। रजिस्ट्रेशन के टाइम जितनी एसेट की वैल्यू जितनी थी एसेट की उसी रेशियो में क्या होगा, ITC ट्रांसफर किया जाएगा न्यू रजिस्टर्ड एंटिटी को। जितनी जितनी वैल्यू ऑफ एसेट उनके पास है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन सिर्फ उतना ही क्या होगा, उतने का ही ITC उनको अवेलेबल होगा। For this purpose, it has been clarified that value of asset means value of entire asset of the business, whether or not ITC have been availed। वही चीज़ bifurcation नहीं करना है यहाँ पे। इन शॉर्ट 10 करोड़ की एसेट्स थी, आज रजिस्ट्रेशन के दिन 2 करोड़ की एसेट इसके पास है, तो अनयूटिलाइज्ड ITC 2 करोड़ के प्रपोर्शन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा न्यू अंडरटेकिंग को, न्यूली रजिस्टर्ड को। Now the newly registered person shall on common portal accept, और इसे भी एक्सेप्ट करनी होगी डिटेल्स दैट हैज़ बीन फर्निश्ड बाय ट्रांसफरर। जो हमारा पुराना रजिस्टर्ड पर्सन है उसने जिसने नया रजिस्ट्रेशन लिया है वो कुछ डिटेल्स देगा, तो ये ट्रांसफरर उसे एक्सेप्ट करेगा इन दिस फॉर्म, और फिर क्रेडिट लेजर में जितना भी ITC इसके लिए था वो इसे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक? यस मैम, आई बात समझ में यहाँ तक। तो हमने अभी 18 सबसेक्शन 1 किया, 18 सबसेक्शन 2 किया, 18 सबसेक्शन 3 किया। नाउ वी आर ऑन 18 सबसेक्शन 4। 18 सबसेक्शन 4 क्यों? क्योंकि 18 सबसेक्शन 4 में हमें रूल नंबर 44 समझ में आएगा। 18 सबसेक्शन 4 करेंगे, 18 सबसेक्शन 4 में आपको रूल नंबर 44 समझ में आएगा, एंड आफ्टर रूल नंबर 44 दैट इज़ एक्चुअली सो इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आता है 18 सबसेक्शन 5 एंड 18 सबसेक्शन 6। थोड़ा सा आधे घंटे का लेक्चर और है, लेंदी ज़रूर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, एंड आई होप यू नो दिस वेरी वेल। Now we are covering 18 subsection 4. 18 subsection 4 is a category that is about reversal of ITC. That is about what? That is about reversal of ITC.
Now, when is the situation that you have to reverse ITC? When the situation arises that you have to reverse your ITC, then you know one thing we have already discussed. When a registered person was doing taxable supply, but now that taxable supply turns to exempt supply. So this is a registered person who is engaged in supply, and this supply was taxable in nature. However, this turned out to be exempt supply. Now this turned out to be in the nature of exempt supply. So in this case he has to what, the ITC that was availed by the person previously need to be reversed. He need to do what, he need to reverse the ITC. He need to what, he need to do reversal of ITC, and reversal of ITC of input as well as capital goods. Reversal of input of ITC, reversal of ITC on input as well as reversal of ITC and on capital goods need to be done. But one more thing, again when you are reversing this ITC on capital goods, this should be first reduced. रिड्यूस क्यों होगा, क्योंकि जितना आपने आईटीसी अवेल किया है ऑन द बेसिस ऑफ यूज वॉट एवर आईटीसी हैव बीन अवेल्ड बाय यू, दे विल नॉट आस्क यू, डिपार्टमेंट विल नॉट आस्क यू कि जो आईटीसी आपने यूज बेसिस पे ले लिया है उसको रिवर्स करो. हियर दे विल से व्हाट, जितना रिमेनिंग लाइफ है ना, जितनी रिमेनिंग लाइफ है किसकी, आपकी एसेट की, तो रिमेनिंग लाइफ के बेसिस पे आप क्या कीजिए, रिवर्सल कीजिए, बिकॉज वो तो अब आप एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज करेंगे. फॉर अवेलमेंट आप क्या कर रहे थे, अवेल कर रहे थे जब आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स. Point to be noted over here, when you were availing the ITC on capital goods, जब उल्टा था कि एग्जेम सप्लाई टैक्सेबल में टर्न होता था तब हम ITC अवेल करते थे, लेकिन वह पास्ट में कितना यूज़ किया उसके बेसिस पे हम रिडक्शन करते थे कि पास्ट में क्वार्टर और पर क्वार्टर 5% वी वर रिड्यूसिंग. बट यहाँ पे पास्ट नहीं या फ्यूचर में कितनी लाइफ बची है उसके बेसिस पे रिवर्सल करना है कि फ्यूचर में इतना टाइम बचा है जो अब हम एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज करेंगे. इन फ्यूचर दिस मच इज द टाइम दैट इज लेफ्ट एंड दिस मच टाइम द एसेट विल बी यूज्ड फॉर द एग्जेम्प्ट सप्लाई. सो द ITC is not available on exempt supply, so we are reversing it. We are what, reversing it. Are you getting the point? So here under rule number 44 you will see the future, that is the time remaining of that asset. So how you will reverse the ITC available to you into remaining life, ITC available into remaining life of the asset divided by 60 months, and you will get how much ITC is required to be reversed. However, in rule number 40 that we have just discussed, in rule number 40 you subtract 5% of the quarter or part of the quarter in order to reduce the ITC. Am I right? Yes, ma'am. So this is what? This is the manner where registered person who was supplying the taxable goods now get converted into what? Now get converted into exempt supply. They need to reverse the ITC on input and capital goods. Similarly, another situation when registered person was paying tax on normal basis, that is under section 9, now get registered under section 10, that is composition scheme. Again here he has to do reversal of ITC on input as well as on capital goods, as well as on what, capital goods. Same process, rule number 44 to be followed for reversal of ITC. Okay. Now here again declaration to be made. यहाँ भी declaration देना होगा, but यहाँ declaration जाएगा ITC 03 में.
हेयर डिक्लेरेशन की कितना आईटीसी है, क्या लाइफ थी, कितना इनपुट में आईटीसी बचा है जिसको हमें रिवर्स करना है, तो दिस डिक्लेरेशन विल बी मेड इन आईटीसी 03। however here there is no time limit फॉर रिवर्सल। यहाँ रिवर्सल की कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, उन्होंने कहा है रिवर्सल करो। 30 डेज का टाइम डिक्लेरेशन का आपको दिया जाता था प्रीवियसली टू अवेल द आईटीसी। आईटीसी अवेल करना है तो 30 डेज में अवेल कर दो, नहीं तो रहने दो, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। डिक्लेरेशन 30 डेज में दे दो, नहीं तो रहने दो। दिस वी हैव जस्ट रेड, वी हैव जस्ट अंडरस्टूड। बट यहाँ पे जब उनको रिवर्सल चाहिए ना, उन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि रिवर्सल में दे विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम यू, तो उनका फायदा है, तो यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं दी। 6 साल पुराना भी आईटीसी रिवर्स करवा लेंगे, लेकिन वहाँ पे 1 ईयर का इनवॉइस चाहिए था। यहाँ रिवर्सल के लिए ऐसी कोई कहानी नहीं है, सीधे आपका पुराना आईटीसी है, 6 साल पुराना भी रिवर्स करो, इंटरेस्ट ले लेंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ टाइम लिमिट नहीं दिया है, दे हैव नॉट गिवन एनी टाइम लिमिट ओवर हियर। अब दूसरी चीज, सपोज करो 6 साल पुराना है, इनवॉइस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इनवॉइस नहीं अवेलेबल है ना, कोई बात नहीं, वो फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे आपकी स्टॉक की। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक विल बी टेकन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन इट एंड अकॉर्डिंगली रिवर्सल करवाएंगे। आप कहेंगे मुझ अब तो मेरे पास पुराने का इनवॉइस नहीं है कि कितना मैंने टैक्स वगैरह पे किया था, इनवॉइस नहीं है, कोई बात नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करके उसके ऊपर दे विल कैलकुलेट टैक्स एंड अकॉर्डिंगली रिवर्सल करवाएंगे। और जब भी फेयर मार्केट वैल्यू पे रिवर्सल है तो सर्टिफिकेशन फ्रॉम सीए कॉस्ट अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड। जब फेयर मार्केट वैल्यू पे रिवर्सल है तो कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर चार्टेड अकाउंटेंट से दे नीड व्हाट, दे वांट सर्टिफिकेशन। यहाँ तक बात समझ में आई? लॉजिकल भी है, ओके यहाँ तक बात समझ में आई? यस मैम। तो यहाँ पे बेसिकली इट्स अबाउट सप्लाई से टैक्सेबल से एग्जाम सप्लाई, नॉर्मल से सेक्शन नंबर 10 की तरफ जा रहे हैं। ये बात आ गई समझ में? यस मैम, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई है। मे आई मूव टू 18 सबसेक्शन 5? क्या अब हम 18 सबसेक्शन 5 की तरफ जाएं? तो 18 सबसेक्शन 5 में वही बोला है कि रूल आपको 44 फॉलो करना है, जो मैं अभी आपको जस्ट बता चुकी हूँ, ये रूल नंबर 44। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। Now what is left is 18 subsection 6. 18 subsection 6 क्या है? It is about sale of capital goods. It is about sale of capital goods. Now when you sell the capital goods, again you are required to do the reversal. Again you are required to do the reversal, but reversal होगा higher of following. Reversal will be higher of following. Normal GST on sale. You have sold, आपने कैपिटल गुड सेल किया, सेल करने के बाद जो भी नॉर्मल जीएसटी आता है उस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, तो सबसे पहले दैट नॉर्मल जीएसटी वो लोग कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल जीएसटी ऑन सेल, सेल करा आपने कैपिटल गुड्स एंड ऑन सेल ऑफ कैपिटल गुड्स जो भी नॉर्मल जीएसटी उस पर बनता था, दे विल कैलकुलेट दैट नॉर्मल जीएसटी। देन आईटीसी कितना रिवर्स होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ के बेसिस पे आईटीसी कितना रिवर्स होना चाहिए, तो आईटीसी ऑन रिमेनिंग लाइफ जो रूल नंबर 44 के अकॉर्डिंग यू विल कैलकुलेट। सपोज यहाँ जीएसटी आता है 12 लाख और यहाँ आईटीसी रिवर्सल करने को आता है 13 लाख, तो बट ऑब्वियस यहाँ पे भी उनका थोड़ा सा ग्रीडी बिहेवियर है कि अब वो 13 लाख आपसे रिवर्स करवाएंगे, ना कि 12 लाख। नॉर्मल जीएसटी 12 लाख आ रहा था लेकिन रिवर्सल 13 लाख है, तो दे विल से व्हाट, हायर ऑफ दिस, मतलब अब आपको हायर क्या करना है, रिवर्सल करना होगा। But when I talk about capital goods here, तो रिफैक्ट्री मटेरियल, मोल्ड्स वगैरह जो हैं, डाइज वगैरह जो हैं, मोल्ड्स, रिफैक्ट्री डाइज, जिग्स, फिक्सचर, जिग्स हो गया, फिक्सचर हो गया, दिस आर ऑल सोल्ड एज स्क्रैप। इसे कैपिटल गुड्स का सेल नहीं माना जाता है। दिस आर ऑल ट्रीटेड एज सेल ऑफ स्क्रैप क्योंकि इनकी शॉर्ट लाइफ रहती है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है सेल ऑफ स्क्रैप की उसका जीएसटी पे करना होगा।
ये जितने वैल्यू में सेल होते हैं एंड इन इसकी वैल्यू पे जो भी जीएसटी लगेगा वो जीएसटी आपको सीधे पे करना होगा, नथिंग एल्स। क्योंकि इनकी लाइफ वगैरह शॉर्ट होती है तो इसे एज अ सेल ऑफ स्क्रैप कहा जाता है एंड ये स्क्रैप जितने वैल्यू पे आपने सेल किया उस पे जो जीएसटी आता है that you have to pay. So this is all about your rule number 44. This was all about your section number 18. यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रीडिंग करवा सकती हूँ लेकिन अननेसेसरी वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। आप एक बार खुद रीडिंग कर लेना। आई होप ये सारी चीज़ें जो मैंने एक एक समझाई है आपको आई है। आप रीडिंग यहाँ से करोगे, आपको रीडिंग करके सारा समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे वही लिखा है, एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। ये तो अभी 18 सबसेक्शन 1 पे ही है, हम लोग ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। तो आप डायरेक्ट एनालिसिस अगर पढ़ेंगे तो एक एक एनालिसिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, सारा की सारा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके बाद भी कुछ लगता है कि मैम ये नहीं आया या फिर ऐसा समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसका ऑलरेडी मेरा वीडियो डला है। मैं अभी मेरा ऑलरेडी डला है, मतलब पुराना वीडियो, लेकिन इसमें देयर इज़ नो अमेंडमेंट। तो आप बिना किसी सोच विचार के इसे रेफ़र कर लेना। और ये वीडियो डलते से ही, जो आज 10 से 11 के बीच में डल जाएगा, तो योर आईटीसी चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। आपका आईटीसी चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है। और कमेंट ज़रूर से करना कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर पढ़ने में, अच्छा लगा नहीं लगा। बिकॉज अगर कमेंट की कमी आती है तो समझ लो यार, मोटिवेशन मेरे लिए तो मोटिवेशन का काम करता है वो। कोई अच्छा मुझे मैसेज करता है, कोई अच्छे से मुझे लाइक कमेंट करता है तो लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैं स्क्रीनशॉट भी रखती हूँ उन चीज़ों के, जस्ट कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन वो कमेंट्स रहते हैं कि आई एम डूइंग वेल, तो मुझे आज और करना है। इट माइट भी आपको 2-3 मिनट लगेंगे उसे कमेंट के लिए, लेकिन वो मेरे लिए फुल डे का मोटिवेशन का सोर्स होता है कि आई एम डूइंग बेस्ट, आई एम डूइंग गुड इन माई फील्ड। आज भी मुझे सुबह से एक बहुत अच्छा मैसेज जस्ट जैसे ही देखा आया इंस्टा पे, दैट मैम प्लीज़ आप किसी और को फॉलो मत करो, आप ऑलरेडी खुद ही मतलब मास्टरपीस या कुछ ऐसे ही उन्होंने लिखा था कि आप अपने आप में ही बहुत बेस्ट हो, तो आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आई गेस उन्होंने ये उस कंटेक्स्ट में बोला होगा जब मैंने कहा था कि वीजी सर को मैं बहुत फॉलो करती हूँ, और एक अपने प्रवीण शर्मा सर जी सर हैं, उनको मैं बहुत, दे आर माई रोल मॉडल, तो मैं उनके जैसे बनना चाहती हूँ। तो आई गेस शायद उन्होंने उस रिस्पेक्ट में कहा होगा। बट हर किसी का लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, एंड दैट टू टीचर्स आर सो डेडिकेटेड, दे आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स देयर प्रोफेशन। तो वो कहीं ना कहीं क्या आपका मोटिवेशन का सोर्स कोई ना कोई होता ही है। आई होप मैं भी जल्दी से कुछ बहुत अच्छा लाइफ में कर लूँ, मेरे भी लक फैक्टर भी चल जाए अलॉन्ग विथ माई हार्डवर्क जो मैं कर रही हूँ। बिकॉज मेरा गोल भी यही है कि मुझे बहुत अच्छा फैकल्टी तो बनना ही है, बट ग्रीडी कुछ नहीं रखना है। जहाँ अगर लगा कि किसी स्टूडेंट को ऐसा है कि वो नहीं पे कर सकता फीस या फिर उसके लिए दिक्कत है, तो आई एम देयर टू हेल्प हिम और हर ऑलवेज। और ये गोल मैं हमेशा रखूँगी, बिकॉज मेरा एक वीडियो अगर नहीं देखा तो देखना, हेल्प अदर्स टिल द टाइम यू आर ऑन अर्थ। वहाँ से जो मुझे रीज़न मिला है मैं टिल नाउ उसे फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो ये ज़रूर बताना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कैसा लग रहा है आईटीसी वगैरह, आपको मेरे डीटी के लेक्चर कैसे लग रहे हैं। जस्ट गिव मी अ कमेंट एंड दैट इज़ लिटरली अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। ओके, तो चलो आईटीसी आज हमारा कंप्लीट होता है। अब बारी आती है रिफंड की, क्योंकि शुभम अरोरा उनका नाम भी याद हो गया, ही इज़ लिटरली वेटिंग फॉर माई 4th पार्ट, और कुछ और बच्चे भी हैं, तो जल्दी से मैं उसकी वर्किंग करके एक आध दिन का आप थोड़ा सा टाइम दो मुझे रिफ़ंड के लिए। रिफ़ंड का 4th पार्ट अपलोड होगा और उसमें जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी मैं अपलोड कर दूँगी। उसके बाद रिफ़ंड का 4th या 5th पार्ट, 2 पार्ट और दे दूँगी मैं। उसके बाद रिफ़ंड के पार्ट नहीं आएंगे, जितना इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट था उसमें वो सब मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, स्टे पॉजिटिव, क्यूमुलेटिव रिविजन करो एज वेल एज प्रैक्टिस करो। दैट इज़ बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ओके, ठीक है, आई नो इट्स मैन बट हम बोलेंगे पर्सन क्योंकि गर्ल्स भी तो आती है। ठीक है, कॉमन फ्रेज है बट ठीक है। चलो लैम जोक
असाइड अब अच्छे से पढ़ो, और आपको रात को भी एक तो ये आईटीसी मिल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा मेरा और क्या रिकॉर्ड हो गया है, टीसीएस। आप देखना टीसीएस मैंने डिटेल में रिकॉर्ड किया है, 1 आवर्स का तो सिर्फ टीसीएस ही रिकॉर्ड हुआ है मेरा। एंड देन सर्च एंड सीजर अभी मुझे रिकॉर्ड करना है, तो मैं अभी 1 घंटे दूसरा मेरा काम करने के बाद आपका सर्च एंड सीजर रिकॉर्ड करूँगी। तो जल्दी जल्दी बस बताते रहना, कमेंट्स देते रहना और मुझे मोटिवेट करते रहना। ओके चलो बाय, प्रिपेयर वेल।